गुजरात के वडोदरा में प्रेम संबंध में आड़े आ रहे दोस्त की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा के दर्जीपुरा में आरटीओ की नंबर प्लेट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले दीपेन पटेल के लापता होने के 5वें दिन उनका शव 70 किलोमीटर दूर कालोल कनेटिया की नर्मदा कैनाल से बरामद किया गया। इस घटना में दोस्त और आरटीओ एजेंट द्वारा ही प्रेम संबंध में आड़े आने वाले दीपेन पटेल की हत्या कर दी होने की जानकारी सामने आई है। कॉन्ट्रैक्टर की कार में ही बैठकर मास्टरमाइंड दोस्त ने आंखों में मिर्च डालकर दीपेन के गले पर कटर घुमा दिया और उसके शव को महिसागर नदी में फेंक दिया। दरअसल दर्जीपुरा गांव में रहने वाले 29 वर्षीय दीपेन पटेल के घर के पास में ही दोस्त और आरटीओ एजेंट हार्दिक प्रजापति रहता था और प्रेम संबंध में बीच में आ रहे दीपेन को रास्ते से हटाने के लिए हार्दिक ने ये साजिश रची। क्राइम ब्रांच द्वारा हार्दिक की कड़ी पूछताछ करने पर हार्दिक प्रजापति ने समूचे मामले को कबूल कर लिया है, जिसके चलते हत्यारे हार्दिक प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 29 વર્ષનો આશાસ્પદ યુવાન હતો અને માતા પિતાનો એકનો એક દીકરો અને બે બહેનો વચ્ચે એક દીકરો અને ઘરમાં આવકનો સ્ત્રોત પણ એ દીકરો હતો। ગત તારીખ 7થી એ દીકરો ગુમ થયો હતો। એની પત્નીને લેવા માટે સાસરીમાં સમા ખાતે નીકળ્યો હતો અને ગુમ થયો। એને એક નાની દીકરી છે અને એની પત્ની ગર્ભવતી છે અને એકનો એક દીકરો અને આખા ગામની વાત કરીએ તો બધાને હેલ્પફુલ થતો એવો દીકરો 7 તારીખથી ગુમ હતો અને 8 તારીખના રોજ હરણી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જાણવા જોગ એક અરજી આપી હતી ગુમની। ત્યારબાદ હરણી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કોઈ કામગીરી કરવામાં આવી નથી। સાથે જે ગ્રામજનો હોય તેના પરિવારના સદસ્યો હોય વારંવાર પોલીસ સ્ટેશન જતા હતા પણ કોઈ પોઝિટિવ પ્રત્યુત્તર જ્યારે કોઈનો એકનો એક દીકરો ગુમ થયો હોય ક્યારેય આપવામાં નથી આવ્યો। એ પરિસ્થિતિમાં મળ્યું એના માટે વડોદરાના સાંસદ એડિશનલ કમિશનર અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એમની કામગીરીને અમે બિરદાવીએ છીએ, પણ સાથે સાથે હરણી પોલીસની જે ઉદાસીનતા જે છે એને અમે વખોડીએ છીએ। गुजरात के अमरेली के धारी में प्रशासन द्वारा हिमखिमड़ी इलाके में अवैध रूप से बनाए गए मदरसा को तोड़ दिया गया है। धारी के तुलसी श्याम रोड पर हिमखिमड़ी इलाके में बिना अनुमति के मदरसा का निर्माण किया गया होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर नक्शा और अलग अलग रिकॉर्ड लेकर दस्तावेज की जांच करने के लिए टीम पहुंची, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। ऐसे में आज सुबह प्रशासन ने अलग अलग विभागों के साथ संकलन कर डिमोलिशन की कार्यवाही शुरू की। इस मौके पर प्रांत अधिकारी, टीडीओ, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीजीवीसीएल और पुलिस विभाग समेत के अधिकारी मौजूद रहे। करीबन 1 घंटे की कार्यवाही में मदरसा को संपूर्ण रूप से डिमोलिश कर कानूनी कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन को खुला करवाया गया है। आज रोज धारीना हिमखिमड़ी विस्तारनी अंदर एक तारीख 1/5/2025 ना रोज शंकास्पद हिलचाल धरावता मौलाना एक मदरसानी अंदरथी पोलीस द्वारा अटकायत करवामां आवेली हती। एमना अनुसंधाने पोलीसना रिपोर्टना अनुसंधाने रेवन्यू विभागने रिपोर्ट करता मकानનું टाइटल ने चकासता एमांथी आ मकान जे छे ए 100 ચોરસ વારના મફત પ્લોટમાં જે તે વખતે કોઈ ગરીબ લાભાર્થીઓને ફાળવેલું મકાન જાણવા મળી આવે, જે અંતર્ગત આ મકાન લેન્ડ કમિટી દ્વારા જે તે લાભાર્થીને ફાળવેલું હતું અને આ લાભાર્થી દ્વારા આ મદરસા માટે આ જે જમીન છે એ દાનમાં આપેલી અથવા તો એમને વેચાણથી આપેલી હોય એવી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જાણવા મળેલ હતું।
જે લેન્ડ કમિટી દ્વારા અપાયેલા પ્લોટની મૂળભૂત રીતે શરત ભંગ થતું હોય, જેથી લેન્ડ કમિટી દ્વારા આ પ્લોટ છે એ સરકાર શ્રી હસ્તગત કરી અને મફત ફરીથી આવા જે ગરીબ લાભાર્થીઓ છે પ્લોટ વિહોણા એમને પ્લોટ આપવા માટેની આ આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે લેન્ડ કમિટી દ્વારા આ પ્લોટ છે એ સરકાર શ્રી અને પોતાના કબજે લઈ અને આ પ્લોટ ખુલ્લો કરવા માટેની કાર્યવાહી આજરોજ કરવામાં આવેલ છે. ધારી પોલીસ સ્ટેશનમાં હિમખીમડી વિસ્તાર આવેલો છે. ત્યાં દિને મોહમ્મદી કરીને એક મદ્રેસા છે. એસડીએમ અને મામલતદાર ધારીના ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં કંઈ નીકળ્યું છે કે આ મદ્રેસા જે છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન ગેરકાયદેસર છે અને એ બાબતે રેવન્યુમાં આખો કેસ ચલાવવામાં આવ્યો, આધાર પુરાવા માગવામાં આવ્યા અને આ મદ્રેસા બનાવનાર અને એનું સંચાલન કરનાર કોઈની પાસે કાયદેસરતા પોતાનું કાયદેસરનું આ બાંધકામ અને જગ્યા હોવાનો આધાર પુરાવો ન મળ્યો, જેથી એનો ઓર્ડર થતાં આજરોજ એ ગેરકાયદેસર બિલ્ડિંગ બનેલી મદ્રેસા દિને મોહમ્મદી હતી જે ચલાવતા હતા અને ચાલતી હતી એને તોડવાનો એક આદેશ થયેલો અને આજે એને ડિમોલેશનનું કામ આ જગ્યાએ ચાલુ છે. આ બંદોબસ્તમાં 2 ડીવાયએસપી, 3 પીઆઈ અને જરૂરિયાત મુજબની તમામ પોલીસ રાયોટ સિસ્ટમને કંટ્રોલ કરવાની જે પેટર્ન છે એ અને બોડી વોર્ન કેમેરા, હેલ્મેટ, લાઠી, જેકેટ, તમામ પ્રકાર ટીયર ગેસ, સેલ, ગેસ ગન તમામ સાથે અને કોઈ જો માથાકૂટ કરે તો એને અટકાવવા માટે અને એની સામે પગલાં લેવા માટે પ્રિઝન વાન પણ મંગાવવામાં આવી છે. पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर सुरक्षा बलों ने जारी किए हैं और उन पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा गया है. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं. हमले के दूसरे दिन ही उनके स्केच जारी कर दिए गए थे और अब उनके पोस्टर लगाए गए हैं. साथ ही उन पर 20 लाख रुपयों का इनाम भी रखा है. जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज मंगलवार सुबह से आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही है. सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेर रखा है. सेना के सूत्रों द्वारा बताया गया कि शुक्र के जंगलों में एनकाउंटर जारी है. पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य किए जाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी, सांबा, कुपवाड़ा और बारामूला में अभी भी स्कूल बंद है. राजस्थान के जैसलमेर भी यही स्थिति है. दरअसल सोमवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन दिखे थे, लेकिन सेना ने कहा कि दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं है. आज सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य दिख रही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार रात 8 बजे देशवासियों को संबोधित किया. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल सिर्फ स्थगित की गई है, बंद नहीं की गई है. हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है. आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है. साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है. ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है. एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है.
पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम के भाषण से पहले शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है, जिसमें तय किया गया कि दोनों ओर से गोली नहीं चलाई जाएगी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पाकिस्तानी गोलाबारी में 5 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान भारत के शहीद हो चुके हैं। वहीं 60 लोग घायल हुए हैं। इनके अलावा 28 सिविलियंस की भी जान चली गई है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के तनाव पर फिलहाल सीज फायर कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में खान खनिज विभाग का सीनियर क्लर्क रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों धरा गया है। गुजरात के वडोदरा के खान खनिज विभाग का सीनियर क्लर्क युवराज सिंह गोहिल एसीबी के हाथों 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। रिश्वत मिल गई होने की जानकारी भी दी थी, जिसके आधार पर एसीबी ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है, जिसमें युवराज सिंह गोहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले आरोपी किरण परमार को भी पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल ऑनलाइन रेती का स्टॉक मंजूर करने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और ये रिश्वत अटलादरा की एक निजी होटल में स्वीकार की गई थी। रिश्वत मिलते ही इस पूरी साजिश में शामिल अन्य लोगों को फोन भी किया गया, जिसके आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है, जबकि अन्य 2 लोगों को वांटेड घोषित कर आगे की कार्यवाही शुरू की है, जिसमें रवि कुमार मिस्त्री और रॉयल्टी इंस्पेक्टर संकेत पटेल शामिल है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018. Dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
first time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation
is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात की कला नगरी यानी वडोदरा शहर में संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। कला और संस्कृति की नगरी वडोदरा को एक नया तोहफा मिला है। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल की ग्रांट से जुबली बाग में 34 लाख की लागत से तैयार किए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बालकृष्ण शुक्ल, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, मेयर पिंकी सोनी और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। नागरिकों के लिए शुरू किए गए इस म्यूजिकल गार्डन में कैजो ड्रम, जाइलोफोन, रैम्बो सांबा, हारमोनी बेल्स जैसे अनेक संगीत वाद्य यंत्र लगाए गए हैं। इन वाद्य यंत्रों को बजाने की प्रशिक्षण व्यवस्था भी की गई है, जिसमें अनुभवी वाद्यकार प्रशिक्षण देंगे। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इन वाद्य यंत्रों को बजाकर संगीत का आनंद ले सकता है। साथ ही ध्यान व मेडिटेशन के लिए भी इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। हमने यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए हैं वो वेदर प्रूफ है, एज वेल एज वो इंस्ट्रूमेंट्स इन ट्यून है ताकि कोई भी बजा सकता है। उसको सीखने के लिए आपको कोई फॉर्मर म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है और आप अपने इनिशियल स्किल सेट और बॉडी रिदम के साथ ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मज़ा कर सकते हैं। आप आइए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या तो बच्चों के साथ और यहाँ पे म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूके से मंगवाए हैं। इसकी खासियत ये है कि ये जो जैसे पियानो है उसको सीखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए, पर ये इंस्ट्रूमेंट के स्वर ऐसे हैं कि वो कभी गलत बज ही नहीं सकते, वो हमेशा सही बजेगा। आप आइए और बजाइए। बड़ौदा में इस बार जो भी सपना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने देखा था कि हमारे यहाँ के जो नगरजन है वो कला प्रिय रसिक बने, उसी तहत वडोदरा कॉरपोरेशन के सहयोग से बड़ौदा में जुबेली बाग गार्डन में आज गौतम बुद्ध जी के बुद्ध पूर्णिमा हम सुबह यहाँ पुष्पमाला अर्पण किया था। तब आज ये अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाए गए हैं जो खास अमेरिका से बड़ौदा के नगरजनों के लिए मंगाए गए हैं। ये मल्टीपर्पज है और उसके साथ साथ ऑल वेदर प्रूफ है। तो ये लगाने के लिए कॉरपोरेशन ने जो जहमत उठाई, इसके लिए माननीय मेयर श्री और म्यूनसिपल कमिश्नर श्री, उनके टीम का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में आपके माध्यम से सभी नगरजनों को भी विनती करता हूं कि ये जो एक नया बड़ौदा शहर में एक नया आयाम आया है तो उसको भी हम सब अनुभव करें और अपने कुटुंबीजनों के साथ आए। आज बड़ौदा के जुबेली बाग में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक श्री माननीय मुख्य दंडक श्री बालूभाई शुक्ला जी की ग्रांट से अलग अलग 6 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लोकार्पण किया गया। कला और संस्कृति की नगरी की जिस बड़ौदा को पहचान प्राप्त है और जिस बड़ौदा नगरी के नगरजन जो माँ सरस्वती की उपासना कला और संगीत द्वारा करते हैं, उनके लिए ये आज रोज जो लोकार्पण किया गया, यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रक्टर भी रखे गए हैं जिनके द्वारा बड़ौदा के नागरिकों को माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए सुबह में 3 घंटे और शाम में 3 घंटे ये जो 6 जितने जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं उनकी विनामूल्य तालीम भी दी जाएगी। सही मायने में माँ सरस्वती जी की भक्ति और आराधना के सभी तरीके से कर सके मेरे बड़ौदा के नगरजन, इसके लिए प्रयोजन किया गया है। मैं अभिनंदन करती हूँ और सभी नगरजनों को यहाँ पर आके माँ सरस्वती की उपासना कर सके। यहाँ अबाल वृद्ध सब छोटे बच्चे से लेकर
विरुद्ध कोई भी ये इंस्ट्रूमेंट की तालीम प्राप्त कर सकता है। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। वडोदरा में नगर निगम के अतिक्रमण विभाग द्वारा आज अमरनाथ सोसाइटी में किए गए अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की गई। यहाँ कार्यवाही यश कॉम्प्लेक्स से बंसल मॉल की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित अमरनाथ सोसाइटी के आंतरिक रास्तों पर हुई, जहां अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया। જવાબ તો આપવો પડે તમારે એ તમારો ના એ ખોટી વાત તમારી આંતરિક રોડ ત્યાં પૂરો થઈ જાય એવું ના હોય મારી એવું ના હોય પણ ત્યાં આંતરિક રોડ પૂરો થઈ જાય તો પડે બધાને। कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन निगम की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की। कशु छे नहीं, अमारो सोसायटी नो इंटरनल रोड छे, कॉर्पोरेशन ने कोई दखल ज ना होय इंटरनल में। કોર્પોરેશન તરફથી કોઈ એવી નોટિસ નથી આવી, એ લોકોને કશું છે નહીં, એમનો એરિયા એમનો જે કોર્ટ બના છે એ નથી કરતા। बताया गया कि 2 स्थानियों की बाइक भी अतिक्रमण हटाते समय जब्त की गई। गोवात्री पुलिस चौकी के लाइन में जो अमरनाथ सोसाइटी है उसका इंटरनल रोड 6 मीटर का इंटरनल रोड है, उसमें जो गैरकायदेसर एंक्रोचमेंट किया है उसका रिमूव करने के लिए हम लोगों ने आज प्रोग्राम लिया है। स्थानिकों का कहना है कि हमारा इंटरनल रोड ही है और सोसाइटी के ही सदस्य का हम लोगों के पास रजुआत है कि ये सब एंक्रोचमेंट है जो दूर करो आप। स्वागत है नाम के एक होटल आई हुई है, उनका शेड है वो भी दूर करेंगे, आज ही करोगे? आज ही करेंगे, आज ही अभी कामगिरी चालू है। वडोदरा के गोरवा क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया होने का मामला सामने आया है। वडोदरा के गोरवा के भारत नगर सोसाइटी में पुराने झगड़े की रंजिश को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। युवक उस समय सोसाइटी के बेंच पर बैठा था, तभी अचानक कुछ लोग तेज धार हथियार, हथौड़े और डंडे के साथ वहां पहुंचे और हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और डर का माहौल बन गया। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावर साफ तौर पर हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही गोरवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनकी तलाश जारी है। फिलहाल इस हमले में घायल युवक की स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।